بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 31 دسمبر ہے، منگل کا دن ہے اور نیو ایئر نائٹ ہے، جبکہ پوری دنیا کے اندر نیو ایئر کی سیلیبریشنز جاری ہیں، جبکہ یمن کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز کر دیا گیا ہے، اور ایسا حیران کن سرپرائز دیا گیا ہے کہ ایک ساتھ یمن کی جانب سے 3 حملے کیے گئے ہیں، اور ایک بار پھر سے ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ چلا دیے گئے ہیں، اور امریکی بحری بیڑا، اسرائیلی ایئرپورٹ اور پاور پلانٹ جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، ان کو نشانہ پہ لیا گیا ہے۔ یہ ایک ساتھ 3 آپریشنز کیسے لانچ کیے گئے ہیں جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے کہ یمن جو کہ پچھلے 1.5 ہفتے سے مسلسل حملے کر رہا ہے اور اس کے حملے رک ہی نہیں رہے، اور پھر جو اس کے پاس ہائپر سونک میزل ہے، ایسی ٹیکنالوجی، اور پھر اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کا استعمال اور اس کو ڈائریکٹلی اپنے نشانے کے اوپر ہٹ کرنا، یہ کیسے اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول حاصل کیا، کیونکہ وہ تو اتنا کوئی عرب ممالک کے اندر اتنا تگڑا ملک تو ہے نہیں، ایک غریب عرب ملک ہے، اس کے پاس یہ ہائپر سونک میزائل کہاں سے آئے، جو کہ اس نے اتنی کمانڈ حاصل کر لی ہے کہ وہ 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرتے ہوئے ہائپر سونک کو ہٹ کرتا ہے اور ڈائریکٹلی اپنے ٹارگٹ اچیو کرتا ہے۔ جبکہ آج اس نے چوتھا جو امریکی بحری بیڑا ہے اس کو نشانہ بنایا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کیسے یہ آپریشنز 3 کیسے لانچ کیے گئے، جس نے یوں کہہ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے حملے کیے تھے وہ غلط فیصلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حملے جو ہے وہ الٹے ان کے گلے پڑ رہے ہیں۔ کیسے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کی جانب سے آج غزہ سے 4 آپریشن لانچ کیے گئے، انہوں نے 4 آپریشن وہاں پر کیے ہیں، جس میں متعدد وہاں پر ان کے فوجی جو ہے وہ مارے گئے اور متعدد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں دنیا اس وقت نئے سال کا جشن منا رہی ہے، جبکہ فلسطینی اذیت ناک حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر خان یونس کے اندر ناصر میڈیکل کمپلیکس میں میڈیکل ٹینٹ سمیت جتنے بھی ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور بارشیں جاری ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے وہاں پر پانی بھر چکا ہے، اور اگر وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں وہ بموں سے بچ گئے ہیں تو وہ سردی سے نہیں بچ پائیں گے۔ ایک طرف تو یہ سینیریو جاری ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی جانب سے آج جس طریقے سے اسرائیل کے اوپر امریکہ اسرائیل نے جو ہے وہ مل کر 6 فضائی حملے کیے یمن کے اوپر، اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ سنا میں حالیہ حملوں میں وزارت دفاع کی عمارت، فوجی دیکھ بھال کے کیمپ اور 1st آرمرڈ ڈویژن کے سابقہ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، اور امریکی برطانیہ کے اتحاد، امریکن اور برطانوی اتحاد نے یہ کہا کہ دارالحکومت سنا کے اندر یمنی کمانڈ سینٹر پر حملے کیے گئے، اور اسرائیلی آرمی ریڈیو کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ یمن کو نشانہ بنانے والے جو جنگجو وہاں پر تھے اور وہ جو جہاز تھے وہ بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں سے اڑ کر گئے تھے۔ اب وہ بحری بیڑے سے وہاں پر انہوں نے پرواز لی تھی، لیکن جب یہ حملہ ہوا ہے تو اسی وقت، اسی حملے کے فعل فور بعد یمن کی جانب سے جو ریسپانس کیا گیا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک سٹرائک کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے حملہ ہوا تھا اس کے بعد یمن کی جانب سے مسلسل حملے جاری تھے۔ آج بھی اسی طرح سے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جب یہ مل کر حملہ کیا گیا تو اس کے فعل فور بعد یمن کی جانب سے ایک ساتھ 3 آپریشنز لانچ کیے گئے، اور وہاں پر جو کوالٹیٹیو آپریشن کیے گئے جس میں اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف جو ان کے یہ آپریشنز تھے، اور ملٹری سپوکس مین کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے نمبر 1 تو ان کا جو بین گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو نشانے پہ لیا اسرائیل میں، نمبر 2 جو یروشلم کے اندر ساؤتھ آف یروشلم میں پاور سٹیشن ہے اس کو نشانے پہ لیا، نمبر 3 جو تیسرا آپریشن تھا وہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ یمن کے خلاف کارروائی کے لیے جہازوں نے اڑان بھری تھی، لیکن رات کے وقت جو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے ایک حوثی میزائل کو روکا تھا، وہاں پر انٹرسیپٹ کیا، لیکن وار ہیڈ الگ ہونے کے بعد میزائل کا ایک پورے کا پورا حصہ جو ہے وہ بیت شیمش کے قریب گرا، جو یروشلم سے زیادہ دور نہیں تھا، اور بتایا جاتا کہ یہ ایرانی مایا ایندھن جو ہے وہ اس والے جو بیلسٹک میزائل رضوان ذوالفقار کا نامعلوم ویرین ہے، اور پھر صبح کے وقت جو یمنی حوثی ہیں انہوں نے بحیرہ احمر کے اندر امریکی بحریہ کے جوہری طیارہ بردار جو جہاز ہے
USS हैरी ट्रूमैन उसको निशाने पर लिया और उसके ऊपर हमले का ऐलान किया। हुआ जनाब वाला ये है कि अब पोजीशन को वाज़े करते हुए बताया गया कि यमनी होशियों ने जो रिपोर्ट किया और कंफर्म किया कि उन्होंने USS ट्रूमैन को निशाना बनाते हुए 2 आला दर्जे की कार्रवाइयां जो हैं वो की हैं। और पहली कार्रवाई में फलस्तीन के शहर तल अबीब के याफा जो उसका शहर था, अब इजरायली शहर तल अबीब है, और उसके बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी कार्रवाई के अंदर जनूबी अल कुदस में एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया और फिर यमनी मिसाइल हमला उसी इलाके से किया गया जिसको अमरीकी हमलों का जो है वो जिसको अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि जहां पर अमरीकी हमले किए गए, जिस इलाके में किए गए, वहां से आगे फिल फोर वहां से रेस्पॉन्स आया। और ये आप पूरी चेन देखिए, जब भी हमला होता है और जितने भी हमले हुए हैं उनमें जहां जहां पर हमला हुआ, रेजिस्टेंस आप लिबनान देख लें, आप फलस्तीन देख लें, आप यमन देख लें, जहां जहां पर मज़ाहमत के ऊपर हमला हुआ, बमबारी हुई, वहां से एग्जैक्ट जो है वो रेस्पॉन्स के तौर पर फायर किए गए। और ये एक जैशर होता है वो दिखाने के लिए कि हाँ मज़ाहमत जो है वो अभी तक खड़ी है, उसने हथियार नहीं डाले। लेकिन अभी जो ये हमला हुआ है उसने हैरान करके रख दिया। और फिर इजरायली अहदाफ के ऊपर ताज़ा तरीन जो यमनी बैलिस्टिक मिसाइल है उनके साथ जो हमला किया गया और उसी इलाके से किया गया जिसको पीर के रोज अमेरिका बरतानिया के हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब दूसरी जानब जो इजरायली मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि अल हुदैदा में अमेरिका और बरतानिया के हमले की इतलात के चंद मिनट के बाद यमन से मिसाइल दागने के बाद वस्ती इजराइल में सायरन बज रहे हैं। बेन गुरियन हवाई अड्डे के ऊपर इजरायली मीडिया नेविगेशन रोक दी गई है और इजरायली मीडिया ने यह कंफर्म किया कि नेविगेशन वहां पर रोक दी गई है। और यमन से 2 रॉकेट जो है वो फायर की जाने के बाद से तैयारों ने वहां से रुख जो है वो मोड़ लिया है और फिर अवाम के अंदर एक क्यास है। और ये जो एक हमला करते हैं उससे पूरे का पूरा जो एक अवाम के अंदर खौफो हरास फैलाने के बाद वो इस तरह की हल्की हल्की जो एक टकोर है वो जारी रखते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लिबनान करता रहा है कि पहले इस तरह से हमला करना और अवाम के अंदर भगदड़ मच जाना और फिर अचानक से एक बड़ा हमला कर देना, एक बड़ा ऐसा मिसाइल दाग देना जो कि इंटरसेप्ट भी ना हो पाए और भरपूर तरीके से वो अपने टारगेट को हिट करे। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर रहा है और ये हमला एक बड़ा तगड़ा हमला था। अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त खित्ते में हो क्या रहा है। देखें, आपको पूरे का पूरा मंजरनामा क्लियर आपके सामने होना चाहिए। यमन इजराइल के फिजाई दिफाई निज़ाम को आजमाकर मशरक़ वस्ता में अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत का मुजाहरा कर रहा है और ये हमले न सिर्फ इजराइलियों में खौफ बल्कि गहरी तशवीश का बायस है, बल्कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है वो पहले ही खुद को मज़ाहमत के एक अहम तरीन हथियार के तौर पर साबित कर चुका है। और पहले ऑपरेशन ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपने दिफा के हक को कानूनी हैसियत दी और दूसरा एक ताकतवर नफ्सियाती और मीडिया मुहिम बन गया जिसने इसराइल को जो कुछ हो रहा था उससे इनकार करने की सलाहियत से महरूम कर दिया। और फिर अब जो दुनिया है वो ट्रू प्रॉमिस 3 का इंतजार कर रही है जो ना सिर्फ एक अलामती कदम बन चुका है जो कि ईरान की जानिब से ये ऑपरेशन किए गए थे और ईरानी मज़ाहमत का ही साथ देते हुए ये चीज़ें अवाम के अंदर मकबूलियत जो है वो हासिल करती दिखाई दे रही हैं और बड़े खित्ते के अंदर बड़े पैमाने पर तस्वीराती तब्दीलियों का आगाज जो है वो ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो कर सकता है। और यमन ने साबित किया कि वो अपने मुल्की वसाइल और अज़म को इस्तेमाल करते हुए इसराइली मफादात के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। फिर बहीर अहमर और बाबुल मंदब जो है वो वहां पर कंट्रोल के तनासुर में ये खास तौर पर अहम है और ये जोग्राफियाई सियासी निकात एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो भी फराहम कर सकते हैं और इनका इनेकात ताकत के तवाज़ुन को नुमाइंदा तौर पर तब्दील भी कर सकता है। लेकिन यहां पर जो तनाज़ा है उसके बैनुल अक़वामी अगर पहलुओं को देखा जाए तो इसराइल और मज़ाहमत के दरमियान जो तातुल है वो सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है। अब ये मशरक़ और मगरिब के दरमियान आलमी तसादुम का हिस्सा है और इसराइल की कामयाबी अमेरिका और नाटो के लिए एक अहम तरीन कामयाबी है जो इसे आलमी तसल्लुत की जमानत के तौर पर देखते हैं। लेकिन यहां पर रूस और चाइना के लिए यह तनाज़ा स्ट्रैटेजिक भी है। अगर मशरक़ नए आलमी निज़ाम में अपना किरदार अदा करना चाहता है तो इसे ईरान समेत मज़ाहमती कुव्वतों की जो फाल हिमायत है वो करना पड़ेगी और उसकी ज़रूरत रहेगी। और फिर ईरान अपनी स्ट्रैटेजिक लचक के साथ इस सूरत हाल का ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो उठा सकता है और इसकी सिफारती एहतियात जैसे फौजी ताकत की हिमायत जो है वो हासिल है और इससे बहरानों को संभालने और फिर इनसे फ़ायदा उठाने की इजाज़त देती है। और इस तनाजुर में
जो ट्रू प्रॉमिस ट्री है उसका नफाज सिर्फ मज़ाहमत का एक कदम नहीं बल्कि आलमी हिकमत अमली का हिस्सा बन जाता है। और यहाँ पर जो ट्रू प्रॉमिस ट्री है, सवाल यह कि यह अब इतना अहम क्यों है। देखें, इस वक्त इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी कोशिशें तेज कर दी, जिसमें हुकूमत को तब्दीली का खुलेआम जो है वो ऐलान भी करना पड़ा। और अब इसराइल एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर जो टैबूज हैं वो एक जो कह लें कि जिस तरह से टैबूज होते हैं उनको वो तोड़ रहा है, और ये एक नाजुक सूरत हाल पैदा करता है जहां ईरान की तरफ से किसी भी ताकीर के तबाहकुन नताइज जो है वो बरामद हो सकते हैं। और ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मशरिक को फैसला कुन और तेजी से काम करना होगा, जबकि ट्रू प्रॉमिस ट्री एक अहम तरीन उनसर हो सकता है जो कि मज़ाहमती कुव्वतों को मजबूत करेगा और जवाब देने के लिए तैयारी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा, और ये जाहिर करेगा कि ईरान और इसके इत्तेहादी अपने मफादात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब देखना यह है, क्योंकि देखें इस खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है और उससे मिलती जुलती है, जहां हर इकदाम के लिए दुरुस्तगी और हिसाब किताब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर ईरान और मज़ाहमती जो धड़े हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला न लिया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त फ़लस्तीनी जो कह लें कि मज़ाहमत है वो जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से मुसलसल ऑपरेशन कर रही है, और 4 एक दिन के अंदर 4 जो ऑपरेशन किए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑपरेशन थे। इसमें इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर एक एंटी टैंक रॉकेट जो है वो बिल्डिंग को हिट किया गया बैते हनून के अंदर, और जहां पर 7 लोग जो है वो वहां पर जख्मी हुए, और जिनमें 3 को जो क्रिटिकल इंजरीज हुई और एक जो है वो मारा भी किया। फिर यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है उसने ऐलान किया है कि वो जो एक उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया कि वो जबालिया कैंप के अंदर फोर्सेस को उन्होंने जो पॉइंट ब्लैंक रेंज के साथ 5 जो उनके फौजी थे उनको निशाना बनाया। और ये ना सिर्फ ये बल्कि मजीद ये भी बताया गया कि वहाँ पर जो मरकाबा टैंक को हिट किया गया और उसके अंदर जो क्रू था वो उसका निशाना बना, और फिर जो एक जीप है मिलिट्री जीप उसको निशाना बनाया गया जिसमें मुतअद्दिद वहाँ पर भी फौजी मौजूद थे, वो भी इस ग्रेनेड का निशाना बने और हलाकतें और जख्मी जो है वो रिपोर्ट हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि 1 soldier killed and 9 other injured from the नित्जा यहूदा बटालियन इन द नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप, मतलब नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप के अंदर जो तकरीबन 9 जख्मी हुए और एक जो है वो हलाक हुआ। और ये इसी तरह से ऑपरेशन जो है वो जारी हैं, जिसने एक बार फिर से मज़ाहमत को पूरी दुनिया के अंदर एक्टिव होते हुए देख लिया है। और यहाँ पूरी दुनिया एक दफ़ा फिर से हैरान है कि कैसे वहाँ जिसको मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल और तसल्लुत जमाते हुए इसराइल को देख रही है, वहाँ पर मज़ाहमत जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, और वहाँ से जहाँ पर वो हमला करते हैं वहाँ से उठकर वो रिटेलिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे जो इसराइल की क्या स्ट्रेटजी होगी और वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव करने की तैयारी करता है, क्योंकि वो हमेशा एक बात कर रहा है, वो कहता है कि उसने मज़ाहमत को ख़त्म करना है, जबकि दूसरी जानिब मज़ाहमत जो है वो अभी तक सर्वाइव भी करी और मज़ीद लोग उसमें भर्ती भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख लूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।